On the theme, Change Me, Lord, for the last 4 Sundays. पिछले 4 रविवार से मुझे बदल दो प्रभु इस विषय पे हम मनन कर रहे थे। And the basic change that we are looking forward is a change in our attitude. और जो मूल बदलाव जिसकी ओर हम देख रहे हैं वो बदलाव है हमारे रवैये में बदलाव। We have been seeing different areas of our attitude which needs to be changed till the last week. पिछले सप्ताह तक हमारे जीवन में जो अलग-अलग रवैये जो होते हैं वो बदल कैसे सकते हैं। Now, without going back into those details, we will come to the 5th title that we are going to meditate for this evening. और उन बातों को फिर से ना देखते हुए सीधे हम अपने 5वें जो सत्र है उसमें आएंगे आज की शाम। And the title for this evening's meditation is Let Me Be Content, Lord. और आज का जो शीर्षक है आज शाम संध्या मनन के लिए वो है मुझे संतुष्ट कर दो हे प्रभु। Desires and contentment are always contradicting one another often. संतुष्टि और जो इच्छा होती है वो एक दूसरे के खिलाफत हमेशा करते हैं। The true contentment is when we reach a stage we have no more desires. और सच्ची संतुष्टि तब होती है हमारे जीवन में जब हमारे जीवन में कोई इच्छा नहीं बचती है। I am satisfied in what I have and what I am. और जो मेरे पास है और जो मैं हूं उसमें मैं संतुष्ट हूं। One of the major fact that mankind is missing today in these days is contentment in their life. और आज जिस बात की कमी मनुष्यत्व के अंदर है वो है कि हमारे जीवन में वह संतुष्टि नहीं है। And the root cause is the desires that is still in their lives which is never ending. और उसका जो मूल कारण है वो इच्छाएं हमारे जीवन में जो कभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। I would like to refer to one passage initially from the Gospel according to Mark. और शुरुआत में मरकुस रचित सुसमाचार से मैं एक हिस्सा पढ़ना चाहूंगा। Chapter 4 verse 18 to 20 when we read. और उसके 4थे अध्याय 18 से 20 आयत को जब हम पढ़ते हैं where we see the Lord Jesus is presenting the parable of the sower. और वहां पे प्रभु यीशु मसीह जो बोने वाला है उसका दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा है। The sower goes and sows the seed. और बोने वाला जाता है और बीज को वो बोता है। And it falls on different kinds of grounds. और वो विभिन्न प्रकार की जो भूमि है उन पर जाके गिरते हैं। And the word that has attracted me from that passage is, he says, the cares of this world, deceitfulness of riches, and the desires of other things has taken it away. और जिस शब्द ने मुझे आकर्षित किया वो यहाँ पे हम 19 आयत में पढ़ते हैं वो इस प्रकार से है, और संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। These are probably the factors that takes away the contentment of our lives. ये कुछ ऐसी बात हो सकती है जो हमारे जीवन से संतुष्टि को निकाल देती हैं। When we are not able to find contentment in what God has given to us, we end up in desires which deprives us of the true contentment. और जब हम उन बातों से संतुष्ट नहीं होते जो परमेश्वर ने हमें दिया है तो उन सच्ची संतुष्टि से हम वंचित हो जाते हैं। And the Bible so loudly says and talks about this. और बाइबल इसे बड़े जोर शोर से बताता है और कहता है। One of the instruction that Paul in his letter to Timothy, 1 Timothy chapter 6 and verse 9, he says, पहले तिमोथियो 6 उसके 9 में पौलुस जो है तिमोथियुस को निर्देश देते हुए ऐसा कहता है, but those who desire to be rich fall into temptation and a snare and into many foolish and harmful lusts which drown men in destruction and perdition. और जो इस प्रकार के जो लोभ में लोग फंसते हैं, पौलुस कहता है कि वह जाल में फंस जाते हैं और इस प्रकार से नाश की ओर चले जाते हैं। So here also the major problem is the desires that is in man.
और यहाँ पे भी जो मूल समस्या है वो है मनुष्य के जीवन में वो इच्छाएं, Desires has got no limit. और इच्छाओं की कोई सीमा नहीं। The common principle is the more you have, the more you crave to have. और साधारण जो इसमें सिद्धांत वो ये है, जितना अधिक आपके पास होता है और अधिक आपकी इच्छा होती है। We would have seen people who have got enough and more surplus. They are not even able to keep an account of their possessions. और ऐसे लोगों को देखा है कि उनके पास अत्यधिक है और उससे अधिक है, और फिर भी वो उसमें संतुष्ट नहीं हो पाते। They still want to have more and more. फिर भी उनको और अधिक पाने की इच्छा होती It है। is not only in the secular world, even the Christians in many areas have lost the contentment in their life and have gone after the desires. और ये ना केवल सांसारिक क्षेत्र में, लेकिन मसीही क्षेत्र में भी मसीही लोग भी इस प्रकार से अपनी संतुष्टि को खोकर इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। We know getting involved into the spiritual things, listening to God's word, spending time in fellowship, involving in the ministry, these are all good. और हम जानते हैं आत्मिक सेवाओं में हम संलग्न होते हैं, प्रार्थनाओं में, सेवकाइयों में, इन सब बातों में, ये सब भली बातें हैं। But we are not yet content with what we have, so we don't find time to certain things which are important in our lives. और इसलिए लेकिन हम जो है इन बातों से संतुष्ट नहीं होते जो हमारे जीवन में है, इसलिए हम और अधिक चीजों की खोज में जाते हैं। The world we live has many glittering attractions around us. संसार जिसमें हम रहते हैं उनके पास बड़े चमकदार आकर्षण हैं। And most of the time it is from Satan himself, the enemy of God. और कई दफा ये शैतान जो प्रभु का शत्रु है उसकी ओर से होता है। One of the examples we see how Satan tempted our Lord Jesus Christ when he was here. और एक उदाहरण हम देखते हैं किस प्रकार से शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को प्रलोभन में, परीक्षा में डाला जब वो इस संसार में थे। In Matthew's Gospel chapter 4 we read about these temptations. और मत्ती 4 में उसकी उस परीक्षा के संबंध में हम पढ़ते हैं। Satan showed him all the kingdoms of the world and their glory. और शैतान ने प्रभु यीशु को सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाया। So this is how Satan brings in attractions before us. और इसी प्रकार से आकर्षण को प्रभु शैतान जो है हमारे सामने लेके आता है। If we are not content in what God has given to us, we will definitely listen to what Satan says there. अगर हम उन बातों में संतुष्ट ना होंगे जो प्रभु ने हमें दिया है, तो सच में हम शैतान की बातों को सुनेंगे। Sometimes when it is fetching us more, making us more rich, giving us our desires, we obviously think he's my friend, it is coming from a good source. और कई बार जब हम धनी होने लगते हैं, हमें और अधिक मिलने लगता है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो है एक अच्छे स्रोत से हमें मिल रहा है। But our Lord Jesus Christ sets a very good example in this particular passage. लेकिन इस हिस्से में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही उम्दा उदाहरण हमारे वास्ते रखा। Being in the human body, he showed an example. Yes, I can be content with what I have. I don't have to go after the glory or the glittering of this world. और मनुष्य के शरीर में होते हुए उन्होंने इस बात को दिखा दिया कि जो मेरे पास है उससे मैं संतुष्ट हो सकता हूं, रह सकता हूं, और मुझे आकर्षण और चमकदार वस्तुओं के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। When we talk about contentment, we all obviously remember one famous verse from the scriptures. संतुष्टि के विषय में जब हम सोचते हैं तो वचन से एक प्रसिद्ध आयत को हम स्मरण करते हैं। 1 Timothy chapter 6 and verse 6, where Paul talks about the money matters. पहला तिमोथी 6 और 6 में जब पौलुस धन संपत्ति के विषय में बात करता है, and he says, now godliness with contentment is great gain. वो कहता है इस प्रकार पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। We all have godliness, there is no doubt about it. हम सब के अंदर भक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
We are godly people. We obey God. We love God. We do a lot of things for God. और हम भक्त जन हैं, भक्त होने के नाते परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, हम उनकी बातों को करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। But Paul is adding something more which is needed to the godliness that we are having. लेकिन पौलुस उस भक्ति के साथ जो हमारे अंदर है कुछ और बातों को जोड़ देता है। He says godliness with contentment. कहता है संतुष्टि के साथ भक्ति। Now, when we are considering on this topic, let me be content, Lord. और जब हम इस विषय पे मनन कर रहे हैं कि मैं संतुष्ट हो जाऊं हे प्रभु, our intention is that may we add contentment to the godliness that we already have now. हमारा ये मनसा है कि उस भक्ति में जो हमारे अंदर है उसमें हम इस संतुष्टि को और जोड़ दें। This series of studies I have been taking on a very practical level based on the New Testament principles. नए नियम के सिद्धांत पे आधारित बड़े ही व्यवहारिक बातों को मैं इन श्रृंखलाओं में बता रहा था। So we need to put one question to our own conscience, our own heart. हमारे विवेक के प्रति, हमारे हृदय की ओर हमें एक सवाल करना है। Lord, I know I have godliness. I fear God. You are with me. I am your child. You know, I'm a fine Christian. Many of us can testify that. और हम कहते हैं कि प्रभु मेरे अंदर विवेक है, मैं एक अच्छा मसीह हूं, और हम इस बात को जानते हैं और हम में से प्रत्येक इसकी गवाही दे सकते हैं। If I ask you, are you a godly person? Most of you will say yes. There is no doubt. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप एक भक्त जन हैं, तो आप उसमें कोई शंका नहीं होगी, आप सब हैं इस बात में, आप मानेंगे। But if I ask you the second question, are you content? What would be the true answer from your conscience? लेकिन दूसरा सवाल अगर मैं पूछूं कि क्या आप संतुष्ट हैं, तो आपके उस विवेक से क्या उत्तर निकलेगा? What is contentment I am talking about here? किस संतुष्टि की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं? Contentment is not having everything that I come across in life. मेरे जीवन में जिन जिन बातों का सामना करता हूं वो सब बातें मेरे जीवन में हो, ये संतुष्टि नहीं है। Contentment is a state of my heart, my mind, and an attitude that is built up in me. और संतुष्टि एक ऐसा एक एहसास है जो मेरे मन, जो मेरे शरीर, मेरे हृदय में जो बनता है। So if I have the will to be content and happy in life, I can still be, even though I do not have 3 square meals. और हो सकता है शायद मेरे पास 3 समय का भोजन ना हो, लेकिन मेरे जीवन में अगर वो इच्छा हो तो मैं संतुष्ट हो सकता हूं। So make up our mind, develop that attitude. Let me be content, Lord. Let that be our prayer. और इसलिए अपना मन बना ले, उस रवैये को बना ले, और वो प्रार्थना हो कि हे प्रभु मैं संतुष्ट हो जाऊं। If we opt to be unsatisfied in everything and complaining, we make our lives miserable. अगर हर बात में असंतुष्ट हैं और शिकायत करते हैं तो अपने जीवन को आप बहुत ही दयनीय बनाते हैं। So let us be content. तो इसलिए आइए संतुष्ट हो जाएं। Let me tell you, contentment is the key for all the joy in life. और जीवन में हर बात की खुशी की कुंजी है संतुष्टि। If you are not content, you are never happy in life. अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो जीवन में कभी भी आप खुश नहीं हो सकते। Life becomes a struggle for you. और जीवन आपके लिए एक मल्ल युद्ध हो जाएगा। It is not merely the wealth or the possessions of this world that makes a person content. ये केवल इस संसार का धन या संसार में वो स्थान ही नहीं है जो एक व्यक्ति को संतुष्ट बनाता है। It is the attitude of the person that makes the difference. ये वो व्यक्ति का रवैया है जो फर्क लाता है। We Christians, when we are preaching the gospel, spreading the gospel, talking to others, they see our practical lives. हम मसीह जब सुसमाचार को सिखाते हैं, बांटते हैं, तो ये संसार हमारे व्यवहारिक जीवन को देखता है। Monday to Saturday, this person runs after the wealth of this world. He has no time for anything. And Sunday he comes and tells me, be content in the Lord. और सोमवार से शनिवार तक संसार के धन में
ये व्यक्ति दौड़ता है, उसकी ओर वो भागता है और रविवार को आके कहता है कि प्रभु में संतुष्ट रहो। That too, if I don't have overtime. और वो भी ऐसा जब अगर रविवार को मेरे पास ओवरटाइम ना हो करने के लिए। Beloved, contentment is a required ingredient in our life to be a good witness to the Lord also. अगर मसीह के लिए एक अच्छा गवाह बनना है तो संतृप्ति, संतुष्टि जो है एक बहुत जरूरी बात है हमारे जीवन में। If all the time I'm complaining, I don't have, then what are we talking about an all-sufficient God? और अगर हर समय हमारी केवल एक ही शिकायत है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो क्या ये जो संपूर्ण सर्व बातों में जो सर्वोपरि परमेश्वर है, तो उसके बारे में क्या हुई? So let us be content. तो इसलिए आइए संतुष्ट हो जाएं। Let me be content, Lord. Let that be our prayer. मैं संतुष्ट हो जाऊं, हे प्रभु, ये मेरी प्रार्थना हो। Let me just bring few facts, the areas where we need to be content in our lives in the limited time that we have before us. हमारे पास जो सीमित समय है उसमें किन किन बातों में आज हमें संतुष्ट होना है, जरा उस पे ध्यान दें। Number one, content in God's creation of me. परमेश्वर द्वारा जो मेरी सृष्टि की गई है, इस बात से हमें संतुष्ट होना है। Let me refer to Ephesians chapter 2 and verse 10. आइए इफिसियों 2 और 10 को देखें जरा, where it says we are his workmanship created with a purpose. और जहां पे लिखा है कि हम उसकी कारीगरी हैं और एक उद्देश्य हेतु हमें बनाया गया है। So I need to be content in my person itself, in the way God has created me, but basically. और मूल रूप से जिस व्यक्तित्व में मुझे बनाया गया है, उस व्यक्तित्व में मुझे जो है संतुष्ट होना है। We are the workmanship of God. हम परमेश्वर की जो हस्तकला है, वो कारीगर है, वो हमारा। The skill and the perfection of God's hand has been manifested in me in creation. परमेश्वर के हाथों का जो हुनर है और उसकी सिद्धता जो है हमारी सृष्टि में, वो जाहिर की गई है। Man is a mystery to himself even today. और आज भी अगर देखें तो मनुष्य जो है अपने आप में एक बहुत ही गुप्त, एक रहस्यमय बात है। The entire anatomy and biology of a man is still a mystery. People are still learning about that. और मनुष्य का जो बनावट है, जो मनुष्य की जो शारीरिक जो बातें हैं, अभी भी एक रहस्य की बात है। लोग बाग अभी भी उसकी खोज में लगे हैं। But the Bible says how wonderfully man has been created. लेकिन बाइबल इस बात को बताता है कि कितनी अद्भुत रीति से मनुष्य की सृष्टि की गई है। You know why we are a mystery to ourselves? We don't understand about our own body and the science of our body. और हम अपने आप में ही कई बार रहस्यमय हो जाते हैं अपने शरीर को, और शरीर की जो बनावट है इसको हम समझ नहीं पाते। Because we are created according to the wisdom of God, not according to the wisdom of man. क्योंकि हमारी जो सृष्टि हुई है वो परमेश्वर के ज्ञान अनुसार हुई है, ना कि मनुष्य के ज्ञान अनुसार। And if you believe that, you need to be content. Yes, I'm created by God. There cannot be any flaw in that. और इस बात को यकीन करने के लिए आपको संतृप्त होना जरूरी है कि मुझ में कोई कमी नहीं हो सकती। We cannot be any better than what we are because God has created me according to his wisdom. और हम इससे और बेहतर नहीं हो सकते जैसा कि हम हैं, क्योंकि हमारी सृष्टि स्वयं परमेश्वर ने की है। Anything man tries to add to the perfection of God or God's creation, he makes it imperfect. और कोई भी चीज मनुष्य जो है उसकी सृष्टि में जोड़ना चाहता है तो उस सिद्धता में वो असिद्धता को ले आता है। Are you content in what you are, the way God has created you? क्या आप इस बात से संतृप्त हैं जिस तरीके से परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है? I need to be convinced I am not a mistake but made perfect in God's plans. मुझे इस बात से पूरा यकीन होना है कि जो मैं जो हूं कोई गलती नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर की योजना में परिपूर्ण हूं। God has created me according to a purpose that he had in his mind. अपने मन में, परमेश्वर के मन में जो उद्देश्य था उस हिसाब से उसने मेरी सृष्टि की है। You and me
are in the foreknowledge of God. He already had a plan for you and me and created according to that. मैं और आप परमेश्वर की पूर्व योजना के अंतर्गत सिरजे गए हैं। मैं और आप उसके उस योजना में थे पहले से। And now if we keep complaining about ourselves, Lord, why am I so short? और अगर अब हम अपने बारे में ही जो है शिकायत करते रहे, प्रभु क्यों मैं इतना नाटा हूं, Lord, why am I so dark? क्यों मैं इतना काला हूं, Why am I not beautiful like that one? और उस व्यक्ति के समान मैं खूबसूरत क्यों नहीं हूं, Why am I not so attractive like the other person? और दूसरा व्यक्ति जिस प्रकार से आकर्षित करता है क्यों मैं नहीं कर पाता। Do you think God did a mistake in making you like this? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाकर कुछ गलती की है? So I did not opt my height, I did not opt my color, I did not opt any of those things. मैंने अपने लंबाई को, अपने रंगत को, इन सब किसी बात का मैंने चुनाव नहीं किया। None of them are in my control. ये सारी बातें जो हैं मेरे नियंत्रण में नहीं है। Then why should we complain about that? तो फिर हम क्यों शिकायत करें इन बातों के लिए? So I want to tell you, my beloved, let us be content in what we are. We are not a mistake, we are perfect. इसलिए प्रियजनों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस बातों में शिकायत ना करें, हम संतुष्ट रहें, क्योंकि कोई गलती नहीं की गई है, हमें परमेश्वर ने बनाया है। Don't try to artificially change your structure which God has given to you basically. और एक धोखे का स्वरूप डालकर अपने जो सही जो आपका रूप है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको बदलने की कोशिश ना करें। Because when God has made me like this, which I may not be very attractive in somebody else's eyes, or I may not be perfect in somebody else's view, but the purpose God has with me cannot be fulfilled if I was made like Him. और ठीक है, मुझे उस तरह से नहीं बनाया गया है, मैं उस तरह उस व्यक्ति के समान नहीं हूं, लेकिन एक उद्देश्य है जिस उद्देश्य के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बनाया है, और वो मेरी सृष्टि में पूरी हुई है। We need to be neat and clean and hygienic and the minimum cosmetics, all those are fine. I mean, we need it in the society as we live in here. हाँ, समाज में रहते हुए साफ सुथरा रहना है और इस प्रकार की सफाई, इस बात का तो ध्यान हमें देना है। But when you do that, be sure it is not because I'm not satisfied with the beauty God has given to me. और जब आप ऐसा करते हैं तो इस बात पे निश्चित रहना, ये इसलिए नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे वो खूबसूरती जो है नहीं दी है जो मुझे देनी चाहिए। These things can never change your personality. ये बातें जो हैं आपके व्यक्तित्व को कभी नहीं बदल सकते। So are you content in what you are? तो क्या आप जो हैं उसमें क्या आप संतुष्ट हैं? Some people tell me, oh, you're so lucky, you're so tall. कुछ लोग कहते हैं आप तो बड़े लकी हैं क्योंकि आप इतने लंबे हैं। I know the difficulties for being so tall when traveling and so many areas. It's not an easy thing for everybody. और मैं ही जानता हूं कि लंबा होने की क्या-क्या मुश्किलात हैं, यात्रा करने में अलग-अलग क्षेत्रों में कितनी मुश्किल होती है। You are not a mistake. You are perfect in God's plan. Be content in that. आप कोई गलती नहीं है, आप परमेश्वर की योजना में बिल्कुल सिद्ध हैं, उसमें आप संतुष्ट रहें। I am an independent creation of God. I am not comparable with anyone else. मैं अपने आप में अनोखा हूं, परमेश्वर ने जो मुझे बनाया है, मेरी तुलना किसी और से की नहीं जा सकती। Romans chapter 9, the Lord Paul talks about the example of the clay and the potter. और रोमियो 9 में पौलुस जो है उस मट्टी और उस बनाने वाले कुम्हार के बारे में कहता है। Now, if you understand that example of the clay and the potter, it is not a mass production. Each pot is the individual, independent creation of the potter. और कुम्हार और माटी के उस बात को आप अगर समझने की कोशिश करें तो इन बर्तनों का जो निर्माण बहुतायत में नहीं हो रहा है, हर बर्तन जो है वो एक एक करके व्यक्तिगत रूप से एक एक करके बनाया जा रहा है। You are not the duplicate of someone else. और आप जो है किसी और की प्रतिलिपि नहीं है। That is why you are different. इसीलिए आप अलग हैं, भिन्न हैं। So don't try to imitate someone else, but try to understand what you are and who you are and live true to your personality that God has given to you. और इसलिए किसी की नकल करने की कोशिश ना करें, अपने उस व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करें जो परमेश्वर ने आपको दिया है और जिस हिसाब से परमेश्वर ने आपको बनाया है। Let me not complain for what I am not. मैं उन बातों की शिकायत ना करूं जो मैं नहीं हूं, But let me be content in what I am. लेकिन उस बातों में संतुष्ट रहूं जो मैं हूं।
What I can do by being what I am is the challenge before me. और जो मैं कर सकता हूं वो होने के नाते जो मैं हूं, ये हमारे सामने चुनौती है। Yes, content in God's creation of me. और संतुष्टि प्रभु की उस सृष्टि में जैसा उसने मुझे बनाया है। So if you find contentment in this primary area, I think most of your problems are solved in life. अगर आप इस प्राथमिक क्षेत्र में संतुष्ट हो जाते हैं तो बहुत सारे और क्षेत्रों में आपको समाधान मिल जाएगा। With that, let me come to the second area where we need to find the contentment. इस बात से मैं चलिए दूसरे मुद्दे पे आता हूं कि कहां पे हमें संतुष्टि की जरूरत है। Content in the liberty which God has given to me. उस स्वतंत्रता में जो परमेश्वर ने मुझे दी है उसमें संतुष्टि। In Galatians chapter 5 and verse 1, Paul says, God has called us to liberty. और गलतियों की पुस्तक उसके 5 और 1 में लिखा है, मसीह ने परमेश्वर ने जो है स्वतंत्रता के लिए हमें बुलाया है। Freedom. आजादी। Let me be content in the freedom that God has given to me. उस स्वतंत्रता, उस आजादी में जो परमेश्वर ने मुझे दी है, मैं संतुष्ट हो जाऊं। Many a time we come across people who don't feel free in their life. They think, no, I want more freedom. I want more freedom. और कई बार ऐसे लोगों का सामना होता है जो अपने जीवन में अपने आप को आजाद नहीं मानते, कहते मुझे और आजादी चाहिए, और आजादी चाहिए। I don't want anyone above me. मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई और भी हो। I don't want the elders to question me. मैं नहीं चाहता कि प्राचीन मुझसे सवाल पूछें। I don't want my parents to discipline me. और मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता मुझे अनुशासित करें। I don't want to work under someone else. मैं किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता। I want to be at the top always. मैं हमेशा ऊपर रहना चाहता हूं। And this desire has made life miserable in the case of so many people. और ये जो इच्छा है, इस इच्छा ने बहुत सारे लोगों के जीवन को जो है बहुत ही बेकार कर दिया है। As the Bible says, God has given us the liberty, the freedom. Let me find contentment in the freedom that God has given to me. और वचन हमें सिखाता है कि हमें वो स्वतंत्रता मिली है, आइए हम उस स्वतंत्रता की प्रभु में पाने की कोशिश करें। Unlike any other creation, man is created with much freedom to act on his own in many areas of his life. और बाकी जो सृष्टि है उसकी तुलना में मनुष्य ऐसी सृष्टि है जो अपनी इच्छा अनुसार बहुत से क्षेत्रों में कार्य कर सकता है। From the creation we see about this. और इस बात को हम सृष्टि से देख सकते हैं। And God has also warned, if you take a wrong decision, what will happen? और परमेश्वर ने इस बात की चेतावनी भी दी है कि अगर गलत निर्णय लोगे तो क्या होगा। Sometimes people ask me a question. कई बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। God knew that man is going to sin and lose the eternal life. Then why did he give that freedom to him? और परमेश्वर तो जानता था कि मनुष्य पाप करेगा, तो क्यों कर वो आजादी परमेश्वर ने मनुष्य को दी। So people blame God for the freedom that God has given to man. लोग जो है परमेश्वर को उस आजादी के लिए जो परमेश्वर ने दिया उस पर उसको दोष लगाते हैं। God has given the freedom. That is why he created you like that. He did not create you like any other being or any other beasts or animals tied to someone, something, and then controlled by someone. He has given you that freedom. परमेश्वर ने आपको जो है स्वतंत्रता से जो है सृष्टि की है। आपको कहीं बांध के नहीं रखा, खूंटे से, किसी जानवर की तरह, किसी और पक्षी की तरह। आप किसी के नियंत्रण में नहीं है। Now, one of the greatest slavery man is suffering is the slavery in sin. और सबसे बड़ी जो गुलामी जिससे मनुष्य ग्रसित है वो है पाप की गुलामी। God has given me the freedom from the slavery. The Bible so clearly says that. बाइबल साफ तरीके से हमें बताता है कि उस गुलामी से जो है हमें आजादी मिली है। When we talk about liberty, the contrast word is slavery. जब हम आजादी कहते हैं तो उसका जो विरोध शब्द है वो है गुलामी। In Romans chapter 6, the Bible talks about the freedom from the slavery that God has given to us. रोमियो 6 में हम उस बात के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जो है हमें उस गुलामी से आजादी दी है। God has given me the freedom from the slavery of sin. पाप की गुलामी से परमेश्वर ने हमें आजादी दी है। Sin is one of the major problem man is struggling with. और पाप जो है सबसे बड़ी समस्या है
जिसका सामना मनुष्य कर रहा है। Has taken the grip of man's life, even though he knows it is wrong, it is not good, but then he keeps doing that again and again, committing that. और पाप ने मनुष्य के जीवन को जो है मुट्ठी में कर लिया है। मनुष्य जानता है ये गलत है, फिर भी बार बार उसे वो करता जा रहा है। To come out of the consequences of sin, man again ends up doing more sin. और इस पाप के परिणाम से बाहर निकलने के लिए मनुष्य और पाप करता है। And basically, the greatest freedom God has given to us is the freedom from sin. और मूल रूप से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी आजादी जो परमेश्वर ने हमें दी है वो है इस पाप से आजादी। Some people think, oh, Christian life is very restricted and with lot of limits. There is no fun in life. कई लोग सोचते हैं कि मसीह जीवन में बड़ी रुकावटें हैं, बड़े रोकथाम है, कोई मजा नहीं है मसीह जीवन में। Why that thought comes? ऐसा विचार क्यों आता है? You have not yet found that contentment in the freedom from sin that God has given to you. अभी तक आपने उस संतुष्टि को जो परमेश्वर ने उस पाप से निकालकर उस आजादी में आपको दी है वो आपने पाया नहीं है। इसलिए We are all human beings. We need some pleasure and fun, isn't it? हम सब मनुष्य हैं, हमें कुछ न कुछ सुख और खुशी को अनुभूति करना है। Why this thought comes? क्यों ऐसा विचार आता है मन में? God has given us the freedom. That is His gift. There is nothing we can add to that. परमेश्वर ने आजादी दी है, ये उसका दान है, हम उसमें कुछ नहीं जोड़ सकते। Every one of you who are listening to me this evening, if you are a believer, a child of God, you have been given the liberty, but you are not yet content in that. You have not found the contentment in that freedom God has given. हर एक जो आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप सबको जो है वो आजादी परमेश्वर ने दी है, लेकिन शायद उस आजादी में आज संतुष्टि नहीं है। The Bible says when God has given us the freedom from the slavery of sin, we become slaves unto God. और जब बाइबल हमें बताता है जब इस पाप की गुलामी से हमें प्रभु ने आजाद किया तो हम उस प्रभु के उस गुलामी में आ जाते हैं। So either you have to be slave to the sin or you have to be slaves to God. तो आज चुनाव यह है कि या तो आप पाप के गुलाम हो या आप इस परमेश्वर के हो। You have the freedom to choose that. और इस बात की चुनौती करने का आजादी आपके हाथ में है। Don't blame God for that. इसमें परमेश्वर पे दोष न लगाएं। But think about the consequences, the end product of that. लेकिन उसका जो उत्पाद होगा या उसका जो परिणाम होगा उसके विषय में जरा सोचें। That makes the difference. और इस बात से फर्क पड़ता है। So primarily be content in the freedom from sin that God has given to us. इसलिए उस पाप की गुलामी से जो आजादी मिली है उसमें आप संतुष्ट रहें क्योंकि इसे परमेश्वर ने हमें दिया है। God has given me the freedom to think, decide and act. परमेश्वर ने हमें सोचने, निर्णय लेने और कार्य करने का स्वतंत्रता दिया है। He has given me the freedom of will to exercise my will. अपनी इच्छा को लागू करने के लिए जो है परमेश्वर ने हमें वो आजादी दी है। When Adam sinned in the Garden of Eden, आदम ने जब अदन की बगीचे में पाप किया, God gave him the freedom. He told him what is right, what is wrong, what not to do and what to do. But then he misused his freedom in a different way. और परमेश्वर ने तो उसे आजादी दी थी, बताया था कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन उसने आजादी को अपने एक दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया। So if you are not content in the freedom that God has given to you, you will think and decide to act against the primary will of God. और अगर आप उस आजादी जो परमेश्वर ने आपको दी है उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं, तो जो परमेश्वर की जो प्राथमिक जो इच्छा है उसका विरोध आप करेंगे, विरोध में चले जाएंगे आप। Now, even my conscience is free. I am accountable to God based on my conscience. Another man's conscience need not judge me. और मेरा जो विवेक है वो भी आजाद है और दूसरे मनुष्य का जो विवेक है वो मेरे न्याय नहीं करता। 1 Corinthians 10:29 Paul talks about that. पहले कुरिन्थियों 1:29 में पौलुस बताते हैं इसके बारे में। So I will be most content if my conscience is true before God. मैं बहुत संतुष्ट तब होऊंगा जब मेरा विवेक जो है परमेश्वर के सामने सच्चा होगा। So let me not use the liberty given to me for the flesh. That is what Bible says.
बाइबल इस बात को बताता है, इसलिए उस आजादी को जो हमें दिया गया है उसको अपने शरीर या देह के लिए हम इस्तेमाल ना करें। I am content in the God-given liberty. Let me not crave for anything outside the God-given boundaries. और जो परमेश्वर की दी हुई जो आजादी है उसमें संतुष्ट रहें, और उन जो जो झाड़ जो लगा रखी है उसको हम टप के बाहर ना जाएं। God has put a boundary around us and given everything that we need. और एक जो है सीमा जो है परमेश्वर ने आधारित कर दी है, उसके अंदर हम रहें, और परमेश्वर ने सारी बात को उसके लिए हमें मुहैया कराया है। And when I cross that boundary, then there is no limit outside. लेकिन जब हम इस सीमा को कूद कर टप कर बाहर चले जाते हैं तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं रहती। You are in the space, it is open. तो फिर एक तरह से आप हवा में आ गए हैं, सब कुछ खुला है आपके लिए। No, when you see, you may think, oh, now I am more free, there is no boundary around me. हाँ, तब आप जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं, अरे अब तो मेरे इर्द गिर्द कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं, अब तो सब खुला हुआ है। God has given me the freedom to think and decide and act. Let me do what I want. परमेश्वर ने सोचने और क्रिया करने और निर्णय लेने की आजादी मुझे दी है, तो मैं वो करता हूं जो मुझे करना है। That is only disastrous. Let us find freedom. Let us find the contentment in the freedom that God has given to us. ये जो है आपको नाश की ओर ले जाएगा, लेकिन आइए उस स्वतंत्रता में संतुष्टि को पाने की कोशिश करें जो परमेश्वर ने हमें दी है। Let me come to the third area where we need to find the contentment. आइए तीसरे उस क्षेत्र में आए जहां पे हमें संतुष्टि की जरूरत है। Content in the possessions given by God. परमेश्वर के द्वारा दी गई संपत्ति में संतुष्टि। Philippians chapter 4 and verse 19, Paul says, God shall supply all your needs. फिलिप्पियों 4:19 में पौलुस कहता है कि परमेश्वर जो है हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। This is one of the very tricky area where man is never content. लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे मनुष्य जो है कभी भी संतुष्ट नहीं होता। Cash every opportunity that he comes across. और जो भी मौका मेरे सामने आ जाए उसका वो जो है मौका उठाता है, लाभ उठाता है। What does the Bible say? बाइबल क्या कहता है? Bible says God has given all the needs of man. परमेश्वर की सारी जरूरतों को जो है परमेश्वर ने मुहैया करवाया है। And when God supplies the needs of man, it is not according to man's desires, but again according to the wisdom of God. लेकिन जब परमेश्वर मनुष्य की जरूरतों को पूरा करता है तो वो मनुष्य की इच्छा अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान अनुसार वो करता है। I may desire for something, I'm not content in what I am having now. मेरे पास जो आज है उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं और अधिक बात की इच्छा रखता हूं। But God does not give me what I desire because He knows what could be the danger if I have that which I do not know. और जो है परमेश्वर जो है उस चीज को नहीं देता है क्योंकि वो जानता है अगर उस चीज को वो हमें देगा तो उसका क्या खतरा हो सकता है, हम इस बात को समझ नहीं पाते। People who cannot understand the glory of God cannot find contentment in what God has given. परमेश्वर की महिमा को जो लोग समझ नहीं पाते तो वो लोग जो है परमेश्वर ने जो दिया है उसकी संतुष्टि का एहसास नहीं कर पाते। Because Philippians 4:19 says, my God shall supply all your needs according to his riches in glory, not according to my wisdom and desire. फिलिप्पियों 4:19 में लिखा है कि अपनी जो महिमा की जो भरपूरी है उसमें वो जो है परमेश्वर हर चीज को हमें देता है, ना कि हमारी उस भरपूरी में। Man evaluates his needs according to his own standards, but God supplies to man according to God's standard. और मनुष्य जो है अपनी ही रीति से जो है जरूरतों को देखता है, लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से मनुष्य की जो जरूरतें हैं उसकी आपूर्ति करता है। God gives the needs of all his creation, even the birds of the air. सारे सृष्टि की जरूरतों को वो पूरा करता है परमेश्वर, उड़ने वाले पक्षियों की भी। Man, whatever possession he has gathered in his name today, they are all from the creation of God. Nothing is created by him. और मनुष्य ने जो आज भी जितनी भी संपत्ति आज बना ली है वो सारी जो है परमेश्वर की सृष्टि से ही बनाई है, उससे बाहर कोई और बात नहीं है। God created all the needs of man even before he created man.
मनुष्य की सारी जरूरतों को भी परमेश्वर ने बनाया, इसके पहले कि वो मनुष्य को बनाता। In 1 Timothy chapter 4, verse 3 to 5, when we read, we see God created everything to be received with thanks. पहले तिमोथी 3 और उसके 4 में हम पढ़ते हैं कि सारी बातों को उसने बनाया ताकि हम उसे जो है धन्यवाद के साथ प्राप्त कर सकें। Now, the toiling and laboring came to man or was ordained to man when he was not content in what God gave. He went beyond that. That's the history. इतिहास यह है कि जब मनुष्य जो है इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ जो उसको दिया गया, तब जो है मेहनत, पसीना बहाना दिया गया मनुष्य को। Who will say enough? कौन कहेगा भाई काफी हो गया है? If it comes, let it keep coming. हाँ, अगर आ रहा है तो और आने दो। What does the Bible say about that? बाइबल इसके विषय में क्या कह रहा है? Now, 1 Timothy chapter 6 and verse 8, Paul talks about this. पहले तिमोथियो 6 और 8 में पौलुस इसके विषय में बताते हैं, And having food and clothing, with this we shall be content. और भोजन और जो है वस्त्र जो है हमारे लिए, उससे हम संतुष्ट हों। Isn't it so right, so true? क्या ये बिल्कुल सत्य नहीं है? But when we don't find contentment in the basic needs, we make our life miserable and no time for anything. लेकिन जब हम इन मूल बातों में ही संतुष्ट नहीं हो पाते, तो हम अपने जीवन को बहुत ही दयनीय बना देते हैं। God knows my present needs and supplies according to that. और परमेश्वर मेरी वर्तमान की जरूरतों को जानता है और उसी के अनुसार आपूर्ति करता है। Matthew's Gospel chapter 7, the Lord Jesus says one example there. मत्ती उसके 7वें में प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण वहां पे देते हैं। If you fathers who are evil knows to give the good things to your children, how much more the Father in heaven? और तुम जो है अपने पिता होने के नाते अपने बच्चों को जो है देते हो, तो कितना अधिक जो स्वर्गीय पिता है वो तुम्हें देगा। And sometimes people say, why was I not born in Tata's family or Birla's family? Why am I born in a poor family? कई बार लोग कहते हैं, अरे मेरा जन्म टाटा बिरला के घराने में क्यों नहीं हुआ, क्यों मैं गरीब घर में पैदा हुआ? Now let me tell you, God has very deliberately kept you in the family context where you are. Be content in that, because God can work through you only in that context, not in somebody else's house. मैं आपको बताना चाहूं, जिस परावेश में, जिस समय पे आप, जिस जगह पे आप हैं, उस जगह पे परमेश्वर ने योजना बनाई। अगर वहां पे आपको रखा है तो परमेश्वर आपको उसी जगह पे रखते हुए अपनी योजना को पूरी कर सकता है। I do not worry for my needs like the Gentiles. अन्य जातियों के समान मैं अपनी जरूरतों के बारे में चिंता नहीं करता। Because worrying for these needs is a Gentile character as pictured by the Lord Jesus Christ. और एक अन्य जातियों का एक चित्र होता है जब हम इन जरूरतों के विषय में चिंतित होते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया। Matthew's Gospel chapter 6 verse 31-32 when we read. मत्ती 6 और उसका 31-32 को जब हम पढ़ते हैं तब ऐसा हम देखते हैं वहां पे, Do not worry saying, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. और क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इन सब बातों की चिंता ना करो, क्योंकि इन सारी बातों की चिंता जो है अन्य जातियां करते हैं। It is not our statement. It is not any man's statement. It is the Lord Jesus who said, the Gentiles seek after these things. ये किसी मनुष्य का कथन नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का कथन है कि अन्य जाति जो है इन बातों की खोज में लगे रहते हैं। After saying that, he says in verse 33 of Matthew 6, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be given to you. और 33 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले परमेश्वर के उस राज्य और उसकी खोज करो, तो ये सारी बातें तुम्हें दे दी जाएंगी। What are all these things? तो ये सारी बातें क्या हैं? What shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? मैं क्या खाऊं, मैं क्या पहनूं, मैं क्या पीऊं? All these things will be given to you when you seek first the kingdom of God and his righteousness. ये सारी बातें आपको दे दी जाएंगी जब आप परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करेंगे। Why we are not able to seek the kingdom of God and his righteousness? क्यों आज परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज हम नहीं करते? Because we are not content in what we have in our needs. So we give first priority to that. क्योंकि अपनी जरूरतों में हम जो है संतुष्ट नहीं हैं,
इसलिए प्राथमिकता जो है हम उसको दे देते हैं। The Bible says, by worrying, we cannot add even a cubit to our stature. और बाइबल कहता है चिंता करने से जो है एक छोटे से बाल के समान भी हम जो है उसमें जोड़ नहीं पाएंगे। I remember one of the servants of God making a statement like this. और एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा, मुझे वो याद आता है, Worry is the most useless exercise of human mind. और मनुष्य के मस्तिष्क का जो है चिंता सबसे बेकार एक कसरत है। So let us be content and let us not waste our lives going after the things of the world. इसलिए आइए हम संतुष्ट हो जाएं और अपने आप को संसार की चीजों के पीछे भागने से रोक लें। I often conclude this thought when I speak with one statement. इस विचार को मैं ऐसा कहते हुए एक कथन के साथ मैं समाप्त करता हूं। When God's kingdom and his righteousness becomes your priority, your needs becomes God's obligation. जब आपके जीवन में परमेश्वर और उसकी धार्मिकता प्राथमिकता बन जाती है तो आपकी जरूरत को पूरा करना परमेश्वर की जरूरत बन जाती है। With that, let me come to the fourth area where we need to be content. इस बात से मैं आइए चौथे मुद्दे पे आता हूं जहां पे हमें संतुष्ट होना चाहिए। Content in the position given by God. परमेश्वर द्वारा दी गई पदवी में संतुष्टि। This is another area where man never is satisfied. ये एक और क्षेत्र ऐसा है जहां पे मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता। Position, craving for position and power. पदवी, स्थान और उस ताकत के लिए जो है मन में लालसा लगी रहती है। I read through the example of Apostle Paul in Acts chapter 9, verse 15 and 16. और पेतों के काम 9 उसके 15 और 16 में प्रेरित पौलुस का मैंने उदाहरण पढ़ा। He was a man in position, there is no doubt. इसमें कोई दो राय नहीं है कि पौलुस जो है वो एक ऐसा व्यक्ति था जो ऊंचे पदवी पे था। But God picked him and put him in another position. लेकिन वहां से उठाकर परमेश्वर ने उसे एक दूसरे पदवी पे स्थापित कर दिया। And humanly speaking, there is nothing that Paul has. He lost everything. और मानसिक तौर से देखा जाए तो अब पौलुस के पास कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ उसने खो दिया। But God put him in different position. लेकिन परमेश्वर ने उसे एक दूसरे ओहदे एक पदवी पे रख दिया। I want to tell you, even in the Christendom, there is high competition for positions today. मैं आपको बताना चाहूंगा कि मसीह समाज के अंदर भी बड़ी एक स्पर्धा हो गई है इस बड़े पदवी के लिए। Like the secular world, Christendom also is going after position in many incidents. और सांसारिक लोगों के समान मसीहत के अंदर भी एक प्रतिस्पर्धा हो गई है, स्थान के लिए लोग भाग रहे हैं। Can you be content in the place, in the position that God has put you? क्या आप उस स्थान पे संतुष्ट हैं जहां पे परमेश्वर ने आपको रखा है? God has called me and put me into a specific ministry in life. और एक विशेष सेवकाई में मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे रखा है। Acts chapter 2 Corinthians chapter 10 verse 13 says God has appointed each one to a specific sphere of ministry. और दूसरे कोरिन्थियों 10:13 में साफ लिखा है कि एक विशेष सेवकाई का जो क्षेत्र है परमेश्वर ने हम सबको दिया है। And God enables me to do the ministry or play the role of that position. It is God who gives me the strength. और परमेश्वर हमें वो ताकत देता है कि जिस क्षेत्र में सेवा की उसने हमें रखा है उस कार्य को हम कर सकें। I don't have to run after the position. मुझे जो है स्थान मान पदवी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। Christian life is compared to a race. मसीह जीवन की जो तुलना की गई है वो एक दौड़ सी की गई है। And the race is restricted to the specific track. और जो दौड़ होती है उन अपनी ही पटरी में हम दौड़ते हैं। Never try to run in another man's track to gain a position in this world. इस संसार में स्थान को पाने के लिए एक दूसरे व्यक्ति की पटरी पे दौड़ने की कोशिश ना करें। Are you content in the position that God has put you? क्या आप उस पदवी में संतुष्ट हैं जहां पे परमेश्वर ने आपको रखा है? When I say it is not only like an elder or a preacher or a leader in the church or the Christian world. और मैंने जैसे बताया कि ये केवल एक प्राचीन या फिर एक प्रचारक एक मसीह जगत तक सीमित बात है। I remember somebody made a statement like this. एक व्यक्ति ने इस प्रकार से इस कथन को कहा, मुझे स्मरण आता है।
it is better to be the sweeper in the town municipality in the will of God than to be the president of the country outside the will of God. और ये बात अच्छी है, भली है कि परमेश्वर की योजना के अंतर्गत एक नगर निगम के अंदर मैं एक झाड़ू लगाने वाला हो जाऊं कि एक किसी देश का मैं जो है प्रधानमंत्री बन जाऊं जो कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार ना हो। How many Christians make their life miserable for the sake of their secular placement and positions? अपने संसारिक औहदे और उस स्थान के लिए कितने लोग अपने जीवन को दयनीय बना देते हैं। No time for family, no time for children, no time for prayer, no time for anything. Just I want to go up and up in life. कोई समय नहीं है परिवार के लिए, कोई समय नहीं है बच्चों के लिए, प्रार्थना के लिए, बस केवल मैं जीवन में ऊपर और ऊपर बढ़ना चाहता हूं। Let us excel in everything, there is no doubt. इसमें कोई दौराई नहीं है कि हमें हर बातों में आगे नहीं होना है। God let us be at the top of every place, wherever God has put us. Nothing wrong in that. अगर परमेश्वर आपको लेके जाता है तो जहां कहीं भी आपको लेके जाए आप उसमें आप श्रेष्ठ रहें, बड़े रहें, इसमें कोई गलती नहीं है। But if it is at the cost of your basic role, your family, and the basic needs, then be careful about that. लेकिन इस बात को पाने के लिए आप अपने मूल बात को खोते हैं, मूल बात आपका परिवार और परिवार में जिसमें आपको स्थापित किया है, तो आपको जरा ध्यान पूर्वक होना पड़ेगा। Some place you should say, yes, this is enough. Let me be stable now. और कहीं ना कहीं तो आपको कहना पड़ेगा, बहुत हो चुका है, अब थोड़ा ठहराव की जरूरत है। Let me come to the fifth area where we need to be content. मैं उस पांचवें क्षेत्र में आऊं जहां पे हमें संतुष्ट होना है। Content in the relationships given by God. परमेश्वर के द्वारा दिए गए रिश्तों में संतुष्टि। God has given me so many people who love me. परमेश्वर ने मुझे इतने लोग दिए हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। Can I be satisfied in that? Can I be content in that? क्या मैं उसमें संतुष्ट हो सकता हूं? क्या उसमें मैं संतृप्त हो सकता हूं? Human life is always filled with relationships. मनुष्य का जीवन जो है वो रिश्तों से भरा हुआ है। Beginning from the family, God brings us in relation with many people in life. परिवार से शुरुआत करते हुए जो है हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते परमेश्वर बनवाता है। And the Bible also gives a lot of importance to these relationships. बाइबल भी इन रिश्तों के ऊपर जो है बड़ा ही जो है महत्व देता है। Mark's Gospel chapter 10 verse 29-30, the Lord Jesus says there. और मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 29-30 में यीशु मसीह कहते हैं, Those who have left brothers or sisters or father or mother or wife or children for the Lord's sake and the Gospels shall not fail to receive 100-fold brothers, sisters, mothers and children. और जिन लोगों ने यानी कि अपने घर को, भाइयों को, बहनों को, माता पिता, लड़के बालकों को सुसमाचार के लिए खोया है, वह 100 गुना पाएंगे उन सारी चीजों को, घरों को, भाई और बहनों को, माताओं को, लड़कों और बालकों को। The relationship in the family and the relationship in the fellowship, both are brought in together there. परिवार में संगति और संबंध और जो संगति में जो संबंध है वो दोनों यहाँ पे लेके आया गया है। My friend, are you content in the relationship that you have with the people whom God has given to you in your life? मेरे मित्र, क्या आप उस बात से संतुष्ट हैं उस संबंध में जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है? The company of believers, the fellowship to which you belong, is it your primary pleasure? और संतों की संगति, वो विश्वासियों का जो झुंड है, क्या वो आपका प्राथमिक उमंग है? Ephesians chapter 2, Paul says that we are members of the household of God, not strangers to one another. और एफेसियों में लिखा है कि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, कोई अनजाने लोग नहीं हैं। Just put a question to your own conscience. अपने विवेक के ओर आप एक सवाल करें। We relate with so many people in this world, isn't it? ऐसा क्या नहीं है कि हम संसार में बहुत सारे लोगों के साथ अपने संबंध को बताते हैं? On one side, we have our brothers and sisters in Christ. We say the blood-bought ones. We belong to the same fellowship. और एक तरफ तो हम कहते हैं कि मसीह संगति है, खून खरीदे हुए हम बच्चे हैं,
On the other side, we have so many friends and neighbors and many other companies, or social relationship and club and many other things. और जो है दूसरी ओर जो है बहुत से और मित्रगण, रिश्तेदार गण जो हैं, और सामाजिक जो एक संबंध की हम बात करते हैं. Where do you find the true contentment, in this or that? कहां पे आपको सच्ची संतुष्टि मिलती है, यहां या वहां? Yeah, are you not content in the fellowship that God has given to you? क्या आपको जो परमेश्वर ने संगति दी है, क्या उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? I come across people who are not happy with their church at all. मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो अपनी कलीसिया से बिल्कुल खुश नहीं है. Let me tell you, there is no place where you will find perfection. मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी आपको जहां पे आपको सिद्धता मिलेगी. Somebody said like this: किसी ने ऐसा कहा, if you are not happy with your church and searching for a perfect church and you find it, please don't join that. किसी ने ऐसा कहा कि आप अगर अपनी कलीसिया से संतुष्ट नहीं हैं और एक सिद्ध कलीसिया की खोज करते हुए उसे पा लेते हैं, तो कृपया उससे ना जुड़ें. Because by your joining, that will become imperfect. क्योंकि आप उससे जुड़ेंगे तो वो असिद्ध हो जाएगा. We need to learn to be content in the basic fellowship that God has given to us. Everybody may not be rich in our church. Everybody may not be eloquent in our church. Everything may not be perfect in our church. But God has placed us there. Let us find contentment in that. और हमें संतुष्ट होना पड़ेगा. शायद हमारी कलीसिया में सारे धनी नहीं होंगे, शायद हमारे कलीसिया में अच्छा बोलने वाले बहुत नहीं होंगे, लेकिन जहां कहीं भी परमेश्वर ने हमें रखा है, आइए हम संतुष्ट रहें उस संगति में. I am content with my family and the church. और उस परिवार जो है और कलीसिया जिसमें मुझे परमेश्वर रखा है, मैं संतुष्ट हूं. Now, unless you are not content in your own family setup, you cannot be content in your church. हाँ, जब तक स्वयं अपने परिवार के अंदर आप संतुष्ट ना होंगे, तो कलीसिया में कभी भी आप संतुष्टि नहीं मिलेगी आपको. Because the relationship in the church is always comparable. क्योंकि जो कलीसिया का जो संबंध है उसकी वो तुलनात्मक है, उसकी तुलना की जाती है परिवार से. Let me ask you, are you content in your own family? मैं सवाल पूछता हूं आपसे, क्या स्वयं अपने परिवार में आप संतुष्ट हैं? Are you content in your own God-given spouse? क्या आपके परमेश्वर के द्वारा दिए गए पति या पत्नी जो संगनी है आपकी, उनसे आप संतुष्ट हैं? Are you able to find contentment in her or him? क्या अपने पति या पत्नी में आप संतुष्टि का अनुभूति करते हैं? Or do you compare them with somebody else's spouses? या फिर अपने संगनियों की तुलना किसी और संगनी से, किसी और लोगों से आप करते हैं? Let us learn to be content in what God has given. There may be infirmities. Everything may not be perfect with that person who is living with you. और आइए हम संतुष्ट होएं. हो सकता है कि जो हमारे साथ है उसमें पूर्ण सिद्धता ना हो, कुछ ना कुछ कमियां हो सकती हैं. The inner story of many externally seen happy families may not be the same as you see from outside. और बाहरी रूप से जो दिखने वाली खुश मिजाज परिवारों की अंदरूनी कहानी ऐसी नहीं है. Everybody has problems. So many places there are problems. हर एक के घर में समस्या है, बहुत से जगहों पे समस्या है. But why do they stay together? लेकिन फिर भी वो एक क्यों रहते हैं? Because they find a godly contentment in that. क्योंकि उन्होंने उसमें ईश्वरीय संतुष्टि को पा लिया है. If Christ could find contentment in me, why can't I find contentment in my partner or the other members of my family? और अगर मसीह ने मुझ में संतुष्टि पा ली है, तो मैं क्यों कर अपने प्रियों और अपने घर के सदस्यों में संतुष्टि नहीं पा सकता? Let me not desire evil company. और बुरे संगति की इच्छा मैं न रखूं. When I'm not content with the God-given relationship, I will have a tendency to find a pleasure in the company outside. जब परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस भक्त संगति में संतुष्टि नहीं मिलती है, तब मैं जो है उस संतुष्टि को बाहर खोजते हुए जाता हूं. Socializing is good to an extent, but when it is at the cost of the primary God-given relationship, it is disastrous. और सामाजिक मित्रता ठीक है कुछ हद तक, लेकिन अगर उसको आप जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस संबंध में उसको खतरे में डालते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उसके परिणाम भयानक हो सकते हैं. 1 Corinthians 15:33 says, evil company corrupts good habit. और जो है पहले कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं
कि जो बुरी संगति है अच्छे जो स्वभाव है उसको भ्रष्ट कर देते हैं। Let us pray, Lord, let me be content with my church. आइए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं अपनी कलीसिया से संतुष्ट हूं। Let me be content in my life partner. अपने जीवन संगनी में मैं संतुष्ट हूं। Let me be content with my parents, with my children. अपने माता पिता, अपने बच्चों में मैं संतुष्ट हूं। These are all God given in my life. I need to find contentment in that relationship. ये सारे संबंध मुझे परमेश्वर ने दी हैं और मुझे इसमें संतुष्टि पाना जरूरी है। Don't always express your unhappiness about them and then make complaints and compare with others. और हमेशा अपने जो आपका जो दुखपन है उसको उनके प्रति हमेशा शिकायतों को ना दिखाते रहें दूसरों के प्रति। Finally, let me conclude with this sixth aspect. आइए आखिरकार छठवीं बात की ओर हम बढ़ें। Content in the hope given by God. परमेश्वर के द्वारा दी गई आशा में संतुष्ट रहें। Titus 2:13 says about a great blessed hope of the glorious appearing of our God. और तीतुस उसके 2:13 में परमेश्वर के जो यीशु मसीह की उस महिमान्वित प्रकटीकरण के बारे में हमें बताया जाता है। I have nothing in the present world comparable to the hope that is ahead of me. वर्तमान के संसार में कोई ऐसी तुलनात्मक चीज नहीं है जो उस आने वाली महिमा से हम उसकी तुलना कर सकें। When you are not very happy with the things around you, जब आप अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजों से खुश नहीं होते, Lord, it's difficult, it's a struggle, I'm not able to cope up, I'm not able to find satisfaction in this. When that thought comes to you, हे प्रभु ये बहुत ही मुश्किल है, मैं इसमें अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं, जब ऐसे विचार आपके जीवन में आते हैं, even when you're suffering in your life, जब आप अपने जीवन में आप क्लेश उठा रहे हैं, think about the glorious hope ahead, the blessed hope ahead, and find contentment in that. तो आप उस आने वाली जो महिमा है, उस आने वाली जो महिमावित आशा है, उसके बारे में सोचे और संतुष्टि पाएं। When I drive long, जब मैं लंबी यात्रा करता हूं, you feel tired towards the end. Oh, it's really, but then I have to go. और बहुत लंबी यात्रा करते करते मैं थक जाता हूं, लेकिन लंबी यात्रा करना है तो करना है, मुझे जाना है। But you know what keeps me driving? लेकिन आपको पता है किस बात से मुझे गाड़ी चलाने का प्रोत्साहन मिलता है? I'm going home. कि मैं घर जा रहा हूं। Once I reach there, that thought and memory is sufficient. Keep going ahead. और एक बार जब मैं पहुंच जाऊंगा अपने घर, वो विचार मेरे मन को भरता है। My brothers, my sisters, my friends, if we are going through struggles in this life, let us find contentment in the hope that is ahead of us. मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे मित्रों, अगर इस संसार में आप क्लेश उठा रहे हैं, तो आइए उस आने वाली जो महिमा है उसमें हम संतुष्टि को खोजें। That is what Peter says in 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. पहले पत्रस 1 और उसके 6 और 7 में पत्रस इस बात को बताते हैं। Rejoice in these sufferings for a little while for the sake of that glory that is to be revealed. इस थोड़े समय का जो क्लेश है इसमें आनंदित हो जाओ, क्योंकि उस आने वाली महिमा के लिए जो हमारे लिए प्रकट होने वाली है। You know, where your treasure is, your heart will be set there. जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन है। Your contentment will be in that. तुम्हारी संतुष्टि उसी में रहेगी। So if you set your mind on the things of the world, your contentment will be in the things of the world. इसलिए तुमने अगर अपने मन को संसार की बातों में लगा लिया है तो तुम्हारी संतुष्टि संसार में रहेगी। And when you lose the things of the world, you become depressed. और जब तुम संसार की चीजों को खो दोगे तो आप निराशा में चले जाओगे। But if you fix your eyes upon Jesus, if you fix your eyes upon the things above, you will never regret. Find contentment in the hope ahead of you. और अगर आपने अपने जीवन के उस निगाह को यीशु मसीह पे लगा लिया है तो कभी भी आप असंतुष्ट नहीं होंगे। Let me be content, Lord. मैं संतुष्ट हो जाऊं प्रभु। Let us learn to be content in life. अपने जीवन में संतुष्ट होना आइए हम सीखें।
At every step, every area of our life, let us find contentment and not complaining, not expressing desires, running after tirelessly to amass the things of the world. आइए जीवन के हर एक क्षेत्र में संतुष्ट होने की हम चेष्टा करें, शिकायत करना बंद कर लें और संसार की बातों के पीछे बेकार भागना जो है बंद कर दें। Lord, let me be content. प्रभु, मैं संतुष्ट हो जाऊं। Let our attitude change. हे प्रभु, मेरा रवैया बदले। May God's name be glorified. Thank you. प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।